Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So, welcome to the next video in the Best of CAT LRDA practice series. Right, so let's begin. So, if you're a CAT 24 aspirant, we have an important announcement to make. We have come up with our last batch for CAT 24 and other management interests. Right, so अगर तुम CAT 24 के लिए prepare कर रहे हो, you or your friend perhaps, right, and you want a comprehensive program जिसमें बिल्कुल basic से end तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा, along with mock tests, along with printed booklets, along with live class doubt solving, the entire syllabus, one-to-one mentorship. If you want everything, each one of these features, so Chanakya batch is the batch for you. You can call on the numbers given in the starting, right? Description में भी होगा इस particular video के. You can inquire, you can get in touch with us, get your doubts cleared, and we can start with CAT preparation. Right, so let's begin with the set for today. Now we have a very interesting set. इसमें basically numbers involved है, थोड़ा puzzle based ज़्यादा है आपका, ठीक है? थोड़ा अपने को possibilities explore करनी पड़ेगी. This is a very good set, right? Now let's start with the basic idea first. First, I'll move out to the screen. First, pause this video right here. Try the set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right, so I hope you have tried this set, right? This was a very interesting set. Let's try and solve this. Let's try and analyze this first. Now, क्या दिया हुआ है हमारे पास? What are the key pieces of information? Let's try and crack them first. So, Rajesh, who was a watchman for an ATM, discreetly observed the personal identification numbers PIN of 4 customers A, B, C, and D when they entered their pins in the ATM. Right? So, एक पर्टिकुलर वॉचमैन है, उसने 4 कस्टमर्स का क्या देख लिया है? पिन देख लिया है, ठीक है? डिस्क्रीटली. Then the pin of each customer comprised of 4 digits. ठीक है? तो ये ABCD जो हमारे पास 4 लोग हैं, उनके जो पिन्स हैं, जैसे A के, B के, C के और D के, इन चारों लोगों की जो पिन है, they comprised of 4 digits each. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ऐसा कुछ सिनेरियो है. Rajesh discreetly noted down the pin of each of the 4 customers, but he misplaced this information. अभी उसने note down तो कर लिया था, but he actually misplaced that information. However, so there is a catch to that. However, he remembered the total number of time each digit was pressed by the 4 customers combined while entering the respective pins. तो meaning क्या हुआ? उसको exactly जैसे A का पिन, B का पिन, C का पिन और D का पिन, ये अब चीज नहीं पता है. But ओवरऑल अगर आप इमेजिन करो तो 4 लोगों के 4 डिजिट के अगर पिन बनने हैं तो वी नीड अ टोटल ऑफ 16 डिजिट्स. तो बेसिकली उसके पास इंफॉर्मेशन उन्हीं 16 डिजिट्स का है कि कौन सा डिजिट 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं, कौन सा डिजिट कितनी बार यूज हुआ है अक्रॉस द 4 पिन्स, राइट? अक्रॉस द 4 पिन्स वो सबसे इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल टेबल में देख रहा है द डिजिट 0 इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड 2 टाइम्स. अब हम ये नहीं कह रहे कि वो दोनों 0 जो होगा एक ही पर्टिकुलर पर्सन में इन्वॉल्व होगा. वो ऑब्वियसली एक पर्सन में भी हो सकता है, 2 लोगों में भी जा सकता है, राइट? तो बट टोटल हमारी काउंटिंग पता है हमें स्टार्टिंग से कि डिजिट्स हमारे कितने कितने बार एक्चुअली में यूज हुए हैं, राइट? सो दैट इज द इंफॉर्मेशन ही हैज. द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स दैट इंफॉर्मेशन इटसेल्फ. तो कुछ डिजिट्स अगर आप नोटिस करोगे तो मिसिंग भी होने चाहिए. फॉर एग्जांपल वी नो फ्रॉम दिस टेबल देयर इज ओनली दिस 4 व्हिच इज 0 टाइम्स, राइट? अवेलेबल 0 टाइम्स मतलब किसी के भी पिन में कहीं पे भी डिजिट 4 नहीं दिख रहा होगा. तो उस टेबल का ये सिंपल सा इंटरप्रिटेशन. नाउ वी हैव सम क्लूज एंड विद द हेल्प ऑफ दोस क्लूज हमें फिगर आउट करना है हर पर्सन का क्या रिस्पेक्टिव पिन होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग these statements one by one. So the first point, Rajesh also recalled the following information. The first point, the pin of each of the 4 customers is a multiple of 5. Now, the first and foremost thing, how does one number become a multiple of 5? सबसे important है, right? Basic point. तो किसी भी नंबर के एंड में, एंड का मतलब यूनिट डिजिट पे, we should have either a 0 or a 5. किसी भी नंबर के एंड में अगर आपका 0 है या फिर 5 है, then that number will become a multiple of 5. Now, सबसे पहली चीज हमें नोटिस करनी है कि हमें चारों नंबर को, because the pin of each of the 4 customers is a multiple of 5. तो चारों नंबर के यूनिट डिजिट पे either we should have a 0 or we should have a 5. तो पहले आप नोटिस कर लो, 0 तुम्हारे पास 2 टाइम्स है और 5 तुम्हारे पास 3 टाइम्स है. 5 बार आपके पास अवेलेबल नंबर्स है, 4 ही जगह डालना है. तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें 4 जगह में 0 5 का कुछ कॉम्बिनेशन जाएगा, बट एक 0 या 5 आपका डिजिट्स में बीच में भी आ जाएगा.
ठीक है, बिकॉज 4 ही आपके पास 0 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए था, बट वी हैव 5 zeros at 5 combined together, right? 2 plus 3, तो कहीं ना कहीं 0 5 आपका इधर भी दिखेगा और एक जगह कहीं पे आपका स्टार्टिंग में भी दिख सकता है। दैट इज द लाइक इंफॉर्मेशन वी हैव। बट अभी हम लाइक इसके बेस पे तुरंत ये नहीं बोलना स्टार्ट करेंगे कि ए एंड बी में किसमें 0 है किसमें 5 है, वो अभी अपने को नहीं पता चलेगा। Now this B point, let's read this B point very carefully. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके इस पूरे पजल में। Except for the pin of B, all the other pins have at least 3 distinct digits. इसका मीनिंग ये हुआ कि B को छोड़ के, तो द लाइक जो कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, that is not applicable to B. ठीक है? So except for B, all the other pins have at least 3 distinct digits. मतलब बी को छोड़ के ए सी एंड डी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ए सी एंड डी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दे शुड हैव एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट डिजिट का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होना चाहिए। तो 3 भी हो सकता है डिस्टिंक्ट डिजिट और 4 डिस्टिंक्ट डिजिट भी हो सकता है। तो एसीडी में जो नंबर बनेंगे, दे कैन हैव 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स एज वेल एज 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। बात ये है कि अगर 4 डिस्टिंक्ट डिजिट से वो नंबर बनेगा, तो मतलब अल्टीमेटली हमें 4 डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए होंगे, ए बी सी डी। द ऑर्डर कुड बी एनीथिंग, राइट? ए बी सी डी, ए सी डी, कुछ भी हो सकता है। बस अभी हम जो लिख रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं कि अगर ए सी डी में किसी भी नंबर में चारों डिस्टिंक्ट है, तो आपके 4 डिफरेंट नंबर यूज होने वाले हैं। द अदर पॉसिबिलिटी वाज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। वहां पे तुम्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर 3 डिस्टिंक्ट डिजिट से एक 4 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो 3 अलग अलग नंबर है लेकिन 4 डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई एक डिजिट क्या होगा, एक बार और रिपीट होगा। तो लेट्स से एबीसी मान लो 3 डिजिट यूज हो रहे हैं, तो उसमें से मान लो ए 2 बार आपका आना पड़ेगा। बस ये लिखने का तरीका है, अभी हम यूनिकली नहीं बोल रहे हैं कि कौन सा 2 बार आएगा, क्योंकि नंबर नहीं है वो, बस रिप्रेजेंटेशन है। तो इट कुड बी समथिंग लाइक ए बी सी। Also that double A doesn't have to come like at the first 2 position, right? वो तो बस लिखने का तरीका है। It could be B C double A B C A. It could be anything, right? बस अभी हमें ये विजुअलाइज करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे नंबर की, right? So that is going to be true for A C D. Now what about B? क्योंकि B हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट काम करेगा, B के लिए आगे जाके कंडीशन और भी हैं। तो B का कंडीशन क्या है? Except for the B, all the other pairs have at least 3 digits, 3 distinct digits. मतलब बी में 3 से कम डिस्टिंक्ट डिजिट होंगे, यही तो उसका कंक्लूजन मिलता है। बाकी सारे नंबर में बी को छोड़ के कम से कम 3 डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो इसका मतलब बी में 3 से कम डिस्टिंक्ट डिजिट है। 3 से कम का क्या मतलब हुआ? आइदर 1 डिस्टिंक्ट डिजिट और 2 डिस्टिंक्ट डिजिट। 0 का कोई पॉइंट नहीं है ना, आइदर 0 डिस्टिंक्ट डिजिट का कोई पॉइंट, कोई सेंस नहीं बनेगा इस बात का। कम से कम एक डिजिट तो आपका यूनिक रहेगा ना। तो अगर एक ही डिजिट से तुम्हारा 4 डिजिट का नंबर बन रहा है, बी के पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं बी का, अगर एक ही डिजिट हुआ है तुम्हारा यूज बी में, तो इसका मतलब चारों डिजिट आपके सेम रहेंगे। इट कुड बी ए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी। अगर एक ही डिजिट से बना है, अगर 2 डिजिट से बना है आपका बी का पिन, तो 2 डिजिट से 4 डिजिट का नंबर बनने के लिए वी हैव अगेन 2 केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर 2 ही डिजिट है तुम्हारे पास अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 and 3, एग्जाम्पल के लिए 2 and 3, बट उसमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आपको रेपिटेशन करने पड़ेंगे ना डिजिट्स के। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई एक नंबर हो सकता है आपका 3 बार आ जाए और दूसरा नंबर 1 बार, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, या फिर दोनों नंबर तुम्हारे 2 बार। तो दीज आर द 3 पॉसिबल केसेस फॉर बी राइट नाउ। अभी और हो सकता है इसमें से केसेस एलिमिनेट हो जाए, बट दैट विल हैपन वंस यू हैव ऑल द कंडीशंस इन प्लेस। आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आया। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द बी स्टेटमेंट। The C point, the pin of C is numerically the highest among the 4 pins, ठीक है। The pin of A has 4 distinct digits, तो देखो A में उसने ये वाला केस बनाने को बोला है मेरे को। The pin of A has 4 distinct digits, 3 of which are not present in the pins of any of the other 3 customers. We'll get back to this in a while. अभी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। The difference between the pin of A and the pin of D is at least 500 and at most 600. Again, range based आपका स्टेटमेंट है। उसके लिए A और D किसी का कुछ तो पता होना पड़ेगा, अभी दोनों नहीं पता है, छोड़ो। The pin of C is an exact multiple of a pin of B. तो B का पता चल जाएगा, तो C वाला उसका एक exact multiple either 1 times, 2 times, 3 times, ऐसा कुछ होना पड़ेगा। And the sum of digits of B, or the pin of B, is 8. Now that is a good statement to begin with.
बिकॉज उसने बी के बारे में एक तो ये इंफॉर्मेशन दी है कि बी का इनमें से कुछ पॉसिबल होगा। ऑल्सो वी नो पिन ऑफ बी शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 5, तो उसके यूनिट डिजिट में 0 या 5 तो दिखना ही पड़ेगा, तो एक डिजिट या तो हमेशा 0 है या तो एक 5 है। ऑल्सो द थर्ड पार्ट कम्स इनटू प्ले, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द पिन ऑफ बी इज 8, तो 4 डिजिट का एडिशन करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब सबसे पहले आओ केस एलिमिनेट करने में, बी कौन सा स्ट्रक्चर लेगा, क्या बी इस टाइप का नंबर हो सकता है कि चारों डिजिट सेम हो। अभी अगर चारों डिजिट सेम है और सम ऑफ डिजिट तुम्हारा 8 है, तो चारों डिजिट को ऑब्वियसली 2 2 2 2 होना पड़ेगा, दैट इज द ओनली पॉसिबल वे। बट फिर वो नंबर 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा, बिकॉज द यूनिट डिजिट इज नाइदर 0 नॉर 5, so this case will get eliminated very easily. Then ये वाला जो केस है, this one, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा क्यों, देखो बहुत सिंपल है। अगर हम इसके साथ ही कंडीशन मिक्स करें, सम ऑफ डिजिट्स 8 आना पड़ेगा, तो इसमें डिजिट्स का सम क्या बनेगा, 2a plus 2b, 2a plus 2b is equal to 8, इसका मतलब a plus b इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, राइट। a plus b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब तुम्हें ये पता है क्लियरली कि तुम्हें a या b कोई नंबर तो तुम्हारे यहाँ पे लाई करेगा ना यूनिट डिजिट पे, कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे वो a आ जाए चाहे b आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो आपका 0 या 5 होनी पड़ेगी ना। क्या ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको चेक करो। अगर मान लो मैं a को 0 रखता हूं तो b 4 हो जाएगा, बट हमें ये आइडिया है कि 4 तो कभी था ही नहीं ना इस नंबर में। 4 कितनी बार आएगा आपका, 0 टाइम्स आएगा, तो ना a को मैं 0 रख सकता हूँ ना मैं b को 0 रख सकता हूँ। एंड फॉर द सेम रीजन ना मैं a को 5 रख सकता हूँ ना मैं b को 5 रख सकता हूँ, बिकॉज इन दैट केस द अदर नंबर विल बी अ नेगेटिव 1। तो इसका मतलब ना मैं a में 0 डाल पा रहा हूँ ना b में 0 डाल पा रहा हूँ, ना मैं a में 4 डाल पा रहा हूँ ना मैं b में 5 डाल पा रहा हूँ, राइट। तो a और b किसी भी नंबर में ना 0 आ पा रहा है ना 5 आ पा रहा है, एंड हेंस आई वुड बी एबल टू से ये केस एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये वाला पॉसिबिलिटी भी आप यहाँ से हटा सकते हो। नेक्स्ट बचता ही आपका ये लास्ट वाला पॉसिबिलिटी, तो डेफिनेटली इससे तुम्हारा आंसर आना चाहिए। अगेन तुम चेक कर लो कि a या b किस में आप 0 या 5 कोई एक चीज डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर तुमने a में स्टार्ट करा, 3 बार a है और 1 बार b है उन 4 प्लेसेस में, ठीक है। क्या a मेरा 0 या 5 ले सकता है, नहीं ले सकता। सबसे पहले अगर a 0 हुआ तो उस नंबर में 3 बार 0 आना पड़ेगा, राइट, 3 बार 0 आना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 0 ओवरऑल हमारा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो a पे 0 नहीं आ सकता। क्या a में कभी भी 5 जा सकता है, द प्रॉब्लम इज अगर a में 5 गया तो 3 बार 5 आएगा उस नंबर में, बट उनका ही ऑलरेडी सम 15 बन जाएगा, पूरे चारों नंबर का एडिशन 8 आना चाहिए। इससे क्या प्रूव हुआ कि a पे ना 0 जा सकता है ना a में आपका 5 जा सकता है। देन ये 0 और 5 किस पे ट्राई करेंगे, b पे ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज वो भी तो यूनिट डिजिट पे जा सकता है। तो अब अगर मैंने b में सपोज 0 डाला तो हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि b में अगर 0 गया इसमें तो 3a वुड बी इक्वल टू 8, बट 8 को तुम 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। हेंस b पे भी 0 नहीं जाएगा, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द फाइनल केस। तुरंत बन जाएगा b अगर 5 गया तो 3a की जो वैल्यू है तो 3 बचेगी, जिससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एंड दैट इज अ परफेक्टली फाइन केस कि मैं a को 1 1 1 रखूं और b को क्या रखूं मैं 5, एंड ऑब्वियसली इफ दैट नंबर b हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5 तो उसका यूनिट डिजिट 5 का मल्टीपल होना चाहिए 0 5, तो 1115 उस नंबर में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि b में 5 हमारा यूनिट्स प्लेस पे जाएगा और बाकी तीनों 1 पहले 3 प्लेसेस पे जाके एडजस्ट हो जाएंगे। तो दैट कंप्लीट्स आवर नंबर 5, बी का हमारा पिन ये हमने एक्चुअली में यूनिटली फिगर आउट कर लिया है, राइट। सो आई जस्ट गो एंड रिमूव दिस पार्ट, इसको भी हटाई देते हैं। ये हमें या तो ही ए से डी के लिए हमारे 3 या 4 आपके डिस्टिंक्ट डिजिट्स आने पड़ेंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करा जाए। अब हमारा एक्चुअली में वो स्टेटमेंट हमें देखना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। सबसे पहले ये वाला द पिन ऑफ सी, दिस वन, द पिन ऑफ सी इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पिन ऑफ डी। तो अब तुम्हारे पास डी का पिन है, उसका एक एग्जैक्ट मल्टीपल होगा आपका सी का पिन। तो अगर मैं सी के पिन की पॉसिबिलिटीज देखना स्टार्ट करूं तो देखो इसका एग्जैक्ट मल्टीपल का क्या मतलब है, या तो इंटू 1 या तो इंटू 2 या तो इंटू 3 ऐसे चलता जाएगा। अभी इंटू 1 नहीं कर सकता मैं, क्योंकि 1115 इंटू 1 करेंगे तो 1115 ही आ जाएगा सी का पिन, बट वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1111 अगर देखो 1 आपका ओवरऑल ही 3 टाइम्स आया था, तो बी में तो 3 बार 1 आ चुका है ना,
अगर 1 टाइम्स करोगे तो सी में भी तो 3 बार 1 आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ही नहीं तुम्हारे पास 1, तो इसका मतलब 2 टाइम्स से स्टार्ट होगा। अब इसका 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 22 30, 3 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 33 45, 4 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 44 60, 5 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 75 55, 6 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 90 56, 7 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 15 7 105 और 78। एक बार और होना चाहिए, अगर मैं इसको 7 टाइम्स कर रहा हूं तो ये आ रहा है, अगर मैं 8 टाइम्स करूं तो 58 120, ये 20 आ जाएगा और 89 8920। तो दीज आर ऑल द पॉसिबल केसेस। इसके बाद इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अगर तुम 8 टाइम्स करे तो 89 20 आया, अगर 9 टाइम्स करोगे तो फिर आपका 5 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नाउ comes the next logical part in this, what cases can we have in this? Now सबसे पहले नोटिस करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, ठीक है, क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो नोटिस करो 2230 नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 2 ओवरऑल मेरा 1 टाइम आया है, तो 2 टाइम्स कहां से आया, हेंस एलिमिनेटेड। नाउ वी नो दैट 4 हमारा कभी भी यूज हुआ ही नहीं है, कभी भी किसी भी पिन में, तो 3345 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, 4460 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट 5575 हो सकता है क्या, अगर बी में नोटिस करो तो एक 5 आपका ऑलरेडी आ चुका है और 5 की टोटल काउंटिंग हमारी कितनी आनी चाहिए 3, इस नंबर में ऑलरेडी 3 है, एक तो यहाँ है ना डेफिनेटली इस वाले पिन में आपका 5, और 3 बार अगर तुम यहाँ पे दे दिए तब टोटल काउंटिंग 5 की फिर 4 हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो कितना है 3 है, हेंस दिस विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड, राइट। सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉजिक था। अब बचते हैं 3 पॉसिबल पिन अभी भी सी के लिए, उनमें हमें फिर से फिगर आउट करना है कि कौन सा पिन हम ले सकते हैं, कौन सा पिन हम नहीं ले सकते। अब ये फिगर आउट करने के लिए एक्चुअली में हमारा जो नेक्स्ट पीस ऑफ लॉजिक है ना, वो हमारा ए से रिलेटेड है। क्या है उस स्टेटमेंट को पढ़ो, द पिन ऑफ ए हैज 4 डिस्टिंक्ट डिजिट, तो ए का जो हमारा पिन है उसमें 4 डिस्टिंक्ट डिजिट आने चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब चारों डिफरेंट होने चाहिए, right, 3 of which are not present in the pins of any of the other 3 customers, तो उन 4 पिन में से 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जो कभी भी किसी कस्टमर में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अब समझना एक चीज, ए वाला पिन भी तो 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल होने के लिए वी कैन डेफिनेटली से कि ए के यूनिट डिजिट पे यहाँ पे हमारा नंबर 0 या 5 में से कोई ना कोई एक तो आना पड़ेगा, but that 0 and 5 cannot be exclusive to A because 0 and 5 मेरे बाकी नंबर में भी दिखेंगे। I hope that is clear। 0 और 5 मेरा B में भी दिखेगा यूनिट डिजिट पे, C में भी दिखेगा और D में भी दिखेगा, यूनिट डिजिट में आएगा, बाकी जगह भी आ सकता है बट यूनिट डिजिट पे तो डेफिनेटली आएगा, राइट। सो दैट हैज टू बी थॉट कि ये जो 0 और 5 हमारा A में है यूनिट डिजिट पे, that is not exclusive to A, वो B C D में भी दिखेंगे, राइट। कैसी भी पॉसिबिलिटी बना लोगे तो B C D में आपको वो नंबर दिखेंगे ही दिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 0 तुम्हारा दोनों, क्योंकि 0 तुम्हारे पास 2 है ना, तो दोनों 0 तुम्हारा A में आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि A में भी तो रिपीट नहीं हो सकता। आप मैक्सिमम एक 0 इसमें डालोगे, दूसरा 0 तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना जाएगा। सिमिलरली 5 हमारे पास कितनी बार, 3 बार आ जाए, तो नहीं तीनों बार 5 इसी में डाल दोगे, कहीं ना कहीं तो 5 जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि 0 और 5 आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ए, वो बाकी नंबर्स में भी दिखेंगे। तो अगर ये बोल रहा है कि 4 डिस्टिंक्ट डिजिट है और उसमें से 3 सिर्फ ए में दिखेंगे, तो 0 एंड 5 विल नॉट बी वन ऑफ इट। तो बचे हुए जो 3 हमारे नंबर हैं ये होंगे ए के लिए एक्सक्लूसिव नंबर्स, दीज विल ओनली अगर 1 टाइम्स, उन ए में भी तो रिपीट नहीं होना है और बाकी में कभी आएंगे नहीं, तो वो ऐसे नंबर होंगे 3 नंबर जिनका टोटल काउंट इस टेबल में तुम्हें कितनी बार दिखेगा, 1 टाइम आता दिखेगा, क्योंकि एग्जैक्टली एक ही बार होनी चाहिए और वो किस में होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए, 2 बार भी नहीं हो सकते। कहां होंगे अगर एक्सक्लूसिव होना है, ठीक है, तो 1 टाइम। अब नोटिस कर लो 1 टाइम कौन सा नंबर आया है, तो 2 आया है, 7 आया है, 8 आया और 9, राइट। तो 2 7 8 9 ये नंबर हमारा एक एक बार आए हैं। इन 4 नंबर में से ए में कोई 3 नंबर जाएंगे और एक नंबर नहीं जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि इनमें से 4 में से 3 नंबर ए के लिए एक्सक्लूसिव होने चाहिए, तो इन 4 में से 3 नंबर ए में पहुंचेंगे और एक नंबर
किसी और में पहुंचेगा, इट वुड बी बी सी, कहीं पे भी जा सकता है। अब इस लॉजिक से तुम इसको अगर इवैल्यूएट करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या बनने वाला है ए के लिए। कैसे? अगर नोटिस करो, सी के लिए बदल जाएगा पहले, इसमें नोटिस करो ये जो लास्ट टू केसेस है, इसमें केस में क्या है 78 दोनों आ गया। अभी सी में 7 और 8 दोनों नहीं जा सकता ना, यही मैंने बोला ए में इन चार में से कोई 3 नंबर जाएंगे और एक नंबर कहीं और जाएगा। 7 और 8 दोनों सी में नहीं जा सकता, बिकॉज फिर ए के लिए 2 और 9 बचेगा, उसको तो 3 नंबर चाहिए इसमें से। hence 7 8 0 5 will get eliminated, and for that very same reason 89 22 will also get eliminated। तो इसमें 8 भी है, 9 भी है और 2 भी है, 8 9 2 सब सी में चला जाएगा, तो ए के लिए कुछ बचेगा नहीं, hence this will also get eliminated। आई बात समझ में? तो इसका मतलब सी के लिए हमारा सिर्फ एक यूनिक पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज 66 90, जो कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में फिट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा सी का नंबर, एंड विद दैट फ्लो, बिकॉज सी में हमने 9 दिया है, तो सी में अगर यहाँ से 9 चला जाएगा तो वी आर वेरी श्योर कि ए में हम 2 7 8 रखने वाले हैं एट द फर्स्ट 3 पोजीशन। ए के फर्स्ट 3 पोजीशन में 2 7 8 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में तो उसका 0 5 में से कुछ आना है। ठीक, ये हो गया। ऑल्सो एक पॉइंट ये इसने बोला था, अब ये मैटर करेगा, द पिन ऑफ सी इज न्यूमेरिकली द हाईएस्ट अमंग द 4 पिन। तो सी का जो 6690 है, 6690 जो है, वो इन चारों वैल्यूज में सबसे हाईएस्ट है। अब एक चीज समझना, ए में हमने क्या बोला, पहले 3 प्लेसेस में 2 7 और 8 जाना है। तुम इस नंबर का स्टार्टिंग 7 से नहीं कर सकते, बिकॉज 7000 की सीरीज में कोई भी नंबर 6690 से बड़ा होगा। चलिए तुम यहाँ पे 8 नहीं डाल सकते, बिकॉज 8000 में कोई भी सीरीज में नंबर हमारा 6690 से भी बड़ा होगा। तो द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट प्लेस फॉर ए वुड बी अ 2, यहाँ डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, राइट। एंड अभी हमें और क्लैरिटी नहीं है, इट कुड बी 7 और 8, इट कुड बी 8 और 7, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 और 5 में अभी कुछ भी जा सकता है, उसकी अभी हमें और बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं, राइट। सो फार सो गुड, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब बचता है हमारा डी का पिन। अब सबसे पहले डी के पिन पे जाने के लिए एक चीज हमें कर लेनी चाहिए, क्या? सबसे पहले हमें ये इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि हमारे पास डिजिट्स कौन से बचे हैं, बिकॉज लाइक अ लॉट ऑफ डिजिट्स आर ऑलरेडी यूज्ड। कौन से डिजिट्स हमारे पास बचे हुए हैं वो देख लो, और हमारे पास रिमेनिंग कंडीशंस क्या है वो देख लो, ठीक है। हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग कंडीशन एक ये है, ए एंड डी के पिन में एटलीस्ट 500 और एटमोस्ट 600 का गैप होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं रिमेनिंग आपके डिजिट्स है क्या, बिकॉज आपको ये भी ध्यान रखना है, डी को छोड़ के हर नंबर में कम से कम 3 डिस्टिंक्ट डिजिट आने वाले थे, तो दैट आल्सो रिमेन्स ट्रू फॉर डी, कि डी का भी जो पिन है उसमें कम से कम तुम्हें 3 डिस्टिंक्ट डिजिट चाहिए ही चाहिए। तो पहले इवैल्यूएट करो कौन से डिजिट यूज हो चुके हैं, कौन से यूज नहीं हो चुके हैं। नाउ फर्स्ट 0 के बारे में हमें क्लैरिटी भी है नहीं कि पूरा यूज हुआ है नहीं हुआ है। एक 0 यहाँ पे है, दूसरा वाला 0 यहाँ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, 0 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 1 अगर नोटिस करो 3 टाइम्स होना था, 3 टाइम्स यूज हो चुका है, तो ये कंप्लीट हो गया है। 2 तुम्हारा एक बार आना था, एक बार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारे पास बचा है 3 2 बार, एक बार भी 3 तुमने यूज नहीं करा है, तो ये तो गारंटी है ना कि डी के पिन में 2 बार 3 दिखेगा, कहाँ दिखेगा वो नहीं पता, बट डेफिनेटली 3 दिखेगा। देन ये हो गया, 4 मेरा 0 टाइम्स, इसको हटाई दो, 5 मेरा 3 टाइम्स है। 5 के बारे में भी श्योरिटी नहीं है, 5 एक बार यहाँ पे आया, अब दूसरा 5 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, फिलहाल इसको छोड़ दो एक सेकंड के लिए, 5 है या नहीं है इस वाले में। 6 2 बार आना था, 6 2 बार आ चुका है। 7 8 और 9 नोटिस करोगे, 7 8 और यहाँ पे 9 कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब अगर डी को मेरे को 3 डिस्टिंक्ट डिजिट देने हैं कम से कम, तो आपके पास चॉइसेस ही तो 3 है, आपके पास या तो 0 है, या तो आपके पास 5 है, और बाकी हमें पता है एक डिजिट तो 3 है ही। तो 3 के अलावा 0 और 5 ही बचे हैं जो कि इसमें आ सकते हैं, एंड बिकॉज इसमें 0 आना गारंटीड है, अभी 3 डिस्टिंक्ट डिजिट बनेंगे, बिकॉज इसमें वो दूसरा वाला 0 आना फिक्स है, तो 0 तो टोटल 2 टाइम्स था, इसका मतलब यहाँ पे 0 फिर नहीं आ सकता, यहाँ पे फिर हमारा क्या फिक्स हो जाएगा, द डिजिट 5, राइट। यहाँ पे हमारा प्रिसाइसली 5 ही फिक्स हो जाएगा यूनिट डिजिट पे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बस 0 को तुम्हें 2 टाइम्स रखना है, डी में डेफिनेटली जाना पड़ेगा, तभी 3 डिस्टिंक्ट डिजिट मिलेंगे, तो 0 इसमें जाएगा, 0 उसमें नहीं जाएगा, उसमें क्या चला जाएगा फिर 5 चला जाएगा।
ठीक है, नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट कंडीशन बचा है, द डिफरेंस बिटवीन द पिन ऑफ ए एंड द पिन ऑफ डी इज एटलीस्ट 500 एंड एट मोस्ट 600। तो ए और डी के पिन में हमारा 500 से 600 के रेंज में डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 500 का गैप होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 600 का गैप हो सकता है। अब जिस तरीके से स्टेटमेंट लिखा है उससे हम तुरंत से तो नहीं बोल सकते थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी को जल्दी से इवैल्यूएट करनी है। ए का जो पिन है वो 2785 हो सकता है या 2875 हो सकता है, लाइक 2000 की रेंज में 2700 2800 के आसपास का नंबर है ना। अगर डी उससे कम हुआ तो 2700 या 2800 अप्रोक्सीमेटली, उससे 500 या 600 कितना भी पीछे आओ, राइट, आप 2785 ले लो या 2875 ले लो, 500 से 600 की रेंज में अगर आप कुछ भी सबट्रैक्ट करते हो, ये अज्यूम कर रहे हैं कि डी कम है, तो 2785 या 2875 में से 500 600 कुछ भी अगर आप सबट्रैक्ट करते हो, आपको नहीं लगता कि आपका जो नंबर डी के लिए बचेगा वो स्टिल 2000 की सीरीज में ही होगा, राइट? बट डी में हमारा 2000 सीरीज का नंबर बन ही नहीं सकता, वो है ही इसमें हमारा डिजिट 2, एंड हेंस द अदर पॉसिबिलिटी इज एक्चुअली ट्रू कि डी का जो नंबर है वो हमारा एक्चुअली ए से 500 से 600 की रेंज में ग्रेटर है, राइट? अभी सिंपल सी बात है यार, 2785 बन सकता है या 2875 बन सकता है। इन बोथ द केसेस अगर आप 500 से 600 के रेंज में कुछ भी बढ़ाओगे तो ये तो डेफिनेट सी बात है ना कि 3000 समथिंग में ही नंबर रहेगा, तो पहले प्लेस पे आपका 3 आएगा ही आएगा, राइट? दूसरे प्लेस पे भी तुम फिक्स कर सकते हो, क्यों? तुम इमेजिन करके देखना ना, 2785 है या 2875 है, तुम किसी भी नंबर में क्या कुछ ऐसा ऐड कर सकते हो कि सेकंड प्लेस पे आपका 0 आ जाए? 3000 नहीं आएगा ना, क्योंकि आप इन दोनों नंबर में 500 से 600 की रेंज में कुछ भी ऐड करोगे तो आपको तुरंत से दिखना चाहिए। अगर आप 600 भी ऐड कर देते हो ना, मैक्सिमम भी, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा 5 तो आ सकता था, नहीं आ पाएगा। अगर 5 भरना भी होता तो इससे आता। 2875 में अगर हम 600 भी ऐड करते हैं ना, मैक्सिमम पॉसिबल क्या, तभी 2475 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कभी भी 3500 समथिंग नहीं बन पाएगा, 5 नहीं आ पाएगा, 5 आ नहीं सकता, 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 0 नहीं बना पाओगे ना। इसमें भी अगर आप कम से कम भी ऐड करोगे 500, तब भी आपका 32 चला जाएगा। हेंस यहाँ पे क्या आने वाला है आपका, वापस से 3 आने वाला है, डबल 3 से तुम्हारा नंबर स्टार्ट होगा। नाउ हमारे पास जो लास्ट की दो पोजीशन है उनको अरेंज करना है, उनको पॉसिबल देखना है, और जो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। अब बस इसमें इतना सा आपसे बोल रहा हूँ, अगर यहाँ ए में, दिस इज एक बेसिक हिडन ट्रायल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बस बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। अगर मैं ए के नंबर में देखूं 2875 अगर यहाँ पे होता और मैं मिनिमम से मिनिमम अगर डी का नंबर बनाना चाहता, तो मैं क्या बोलता, कम से कम अगर मेरे को बनाना है तो मैं बोलूंगा ना कम से कम गैप हो ए के साथ, तो कम से कम गैप ए के साथ क्या होता है 500 के आगे, तब भी मेरा नंबर अगर नोटिस करोगे 500 भी अगर ऐड होता तो कितना आता, 3375। देयर लाइज द प्रॉब्लम कि अगर ए 2875 बना तो तुम्हारे इस डी को कम से कम 3375 बनना पड़ेगा। बट 3375 हम कहां से पहुंचा है, हमारे पास मैक्सिमम डबल 3 के बाद ना या तो 05 बनेगा या तो 50 बनेगा, 3350 तक मैक्सिमम पहुंच सकता है। इसलिए यहाँ पे 2875 नहीं बन सकता, बिकॉज उसके करस्पॉन्डिंग डी की मिनिमम वैल्यू ही तुम्हें 3375 चाहिए थी, विच इज नॉट पॉसिबल। एंड हेंस मैं डी को तो नहीं, बट मैं इसको फिक्स कर पा रहा हूं कि यहाँ पे हमारा नंबर क्या बनेगा 2785, एंड ये नंबर फिर कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि 2785 में अगर आप 500 ऐड करोगे तो हमारा बनेगा 3385, सॉरी 3285, 3285, और अगर आप इसमें 600 ऐड किए होते तो 100 और बढ़ जाता 3385। तो इनके रेंज में हमारा नंबर लाई करना पड़ेगा। तो नोटिस करोगे 3305 उस रेंज में है और 3350 भी उस पर्टिकुलर रेंज में है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, इधर इट इज 3305 और इट इज 3350। ठीक है, सो ऑल द पिन्स हैव बीन डिटरमाइंड uniquely except for the pin of, right? So that is all about the set. Now we can actually go into the problem. So what is the pin of B? B का figure out कर सकते हैं 1115, right? How many of the 4 pins are multiples of 3? ये कैसे चेक करते हैं?
sum of digits of any number has to be divisible by 3 to make that number a multiple of 3. तो sum of digit देख लो, sum of digit यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 से divisible होना चाहिए. तो ये कितना हो गया, 15 plus 5 22 not divisible, 5 plus 3 8 not divisible, 6 6 9 12 plus 9 21, yes it is divisible by 3, hence that is divisible. Or 3 3 5 and 0, so it would be 6 and 5, 6 and 5 is 11, also not divisible. So only one number is a multiple of 3. What is the sum of the pins of A and C? So A and C के pins को हम add कर सकते हैं because वो तो unique हो गया. ये कितना हो गया, 90 50. So this is what, 5 7 1 14 4 and 1. So 6 3 9. 94 75 is the sum of the pins of A and C. Finally, if 2 out of the 4 pins are multiples of 10, what is the pin of D? Now, if 2 out of the 4 pins are multiples of 10, multiples of 10 बनने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, either we should have a 0 or a 5. तो अगर वो बोल रहा है 2 out of the 4 pins are multiples of 10, what is the pin of D? तो इसमें से दो नंबर 0 से एंड होना चाहिए ना. तो इनमें कौन हो सकता है, दो 0 से एंड. एक तो ये होगा डेफिनेटली, दूसरा ये नहीं हो सकता ना. इनमें फिर भी चॉइस है, 0 आप रख सकते हो. तो अगर इसको 0 से एंड कराना है तो यहाँ नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, एंड दैट मेक्स द पिन ऑफ D as 33 T. And that is the answer to my last problem. Right, so I hope you have understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.